ٹائم ہوندی ہے 10 سال بعد ایک صدی بعد 1000 سال بعد اس طرح الہام نے پورے ہون گے اللہ دے فضل سے۔ دو بکریاں ذبح ہو گئیں شیطان تذبحان، یہ اللہ ہاں دا کلام۔ بالکل، وہ بھی ہاں جی کابل ہی ہوئی ہیں 2 بکریاں ذبح، وہ تے مرزا صاحب تے دسیا احمد بیگ تے سلطان بیگ نے۔ اور 2 بکریاں وہ بھی حسن یہ بھی کدے تے پوری ہوئی ہیں اس طرح۔ ہاں جی جدے تے ہوندیاں نے کر لو پوریاں، 2 پل ٹوٹ کے اللہ دا کلام ہے۔ پل ٹوٹے نے یا ٹوٹن گے یا کوئی ہوئے گا تو اللہ دا کلام ہے۔ 35 36 41 55 اللہ دا کلام ہے۔ بھائی میں نذیر صاحب اگر وہ لکھے الہام ہے تو اللہ دا کلام ہے نا جی بالکل۔ کی گل ہے یہ اعتراض کی ہے؟ کیڑے اللہ نو تسی مندے ہو ندار دو بھئی اللہ جب اللہ کوئی گل دستا ہے کوئی خبر دینا ہے تو یہ کیڑے اللہ کو مانتے ہو؟ اس کتے کا آخری دم ہے، کیڑے کتے دا آخری دم ہے؟ کہ ہن کدے بارے چ کہ پورا ہو گیا یا ہوئے گا یا کی ہے وہ تے لکھیا ہے کتا ہے یا دسیا جاتا ہے کچھ الہام پورے ہو گئے نے، وہ مرزا صاحب نے ذکر کر دیتے ہیں الہام ہویا پورا ہو گیا، کچھ نہیں ہوئے کچھ ہون گے۔ اے اللہ دا کلام ہے کتا ہے کتے کی عدد پر مرے گا۔ ہاں بھٹو دے بارے چ سی بھٹو دے تو جمعے بھی نہیں جدو مرزا قادیانی نو الہام ہویا کتا ہے کتے کی عدد پر مرے گا۔ میں کہ بھٹو دے بارے چ ہے الہام دے بھٹو دے بارے چ یار بھٹو دے بارے نہیں، جمبا کرو نو پوچھو آندے نے بشیر الدین محمود احمد دے بارے سے۔ وہ تے انہاں نو اچھا وہ تے باقی معاملے چھڑ دے وہ چھڑ دیو آ گیا۔ یار کی تہاڈی مطلب کا کھاندے ہو یا کی کھاندے ہو تسی؟ چلو اے سسٹر آئی نے انہاں دی گل کر لیندے، ایک منٹ خاموشی نال سنو پھر جی ذرا گل میں ذرا ڈرائیو کر رہے ہیں تے تسی گل کرو جی، اچھی اچھی گلاں کرو۔ اج جو کہ ہے معراج دا واقعہ ہویا تے اودے بارے کوئی آویں نذیر صاحب معراج دے واقعے دے بارے کوئی ذکر کرو۔ معراج دا واقعہ جڑا نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے جسمانی معراج کرایا تے جسمانی سی یا کی سی؟ جسمانی سی، لیکن مرزائی جڑے نے مسجد اقصی جڑے امامت کرائی ہے مسجد اقصی قادیان سی جڑے انبیاء دی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو۔ جی 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 عامر نذیر بھائی، میں نے نا ایک کنفیشن کرنا ہے۔ جب میں تقریباً لگ بھگ مجھے ہو گیا سال ہو گیا مجھے ٹک ٹاک پہ آئے ہوئے، اور شروع میں کئی لوگوں نے جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں کوئی اوپر نیچے بات کی، لیکن آپ یقین کریں میں اس بات کا آج اقرار کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو میں پچھلے کتنے دنوں سے میں لگاتار آپ کی براڈ جب جدھر بھی آپ موجود ہوتے ہیں میں تقریباً گھنٹوں آپ کو سنتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جتنی اچھی میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میں نے ابھی تک کسی کو بھی سنا ہے نا، جتنی اچھی طریقے سے آپ ان کی منجی ٹوٹتے ہیں نا، جتنے اچھے طریقے سے آپ رد قادیانیوں میں تبلیغ کر رہے ہیں نا، یقین کریں میرا جتنی دیر تک میں فارغ ہوتی ہوں نا میں گھنٹوں آپ کو سنتی رہتی ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چلیں ایک کام آپ کر رہے ہیں۔ اپنی ایک بات پہ غور کریں، آپ یہ بولا کریں جتنی دیر تک آپ ان کے دلائلوں کے جواب دیتے ہیں نا اچھے، یہ پنجابی والا لفظ اچھا نہیں ہے، پھر نیچے لوگ نا ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لیڈیز آئی تھی انہوں نے یہ لفظ بولا تھا۔ اچھا جی چلیں جی میں معذرت کر لیتی ہوں جی، جتنی دیر جس طرح آپ کو میں یہ کہہ دیتی ہوں، جس طرح آپ ان کو دلائل دیتے ہیں نا، جس طرح آپ ہر بات کو جو ہے نا حوالے سے پیش کرتے ہیں، جس طرح ایک سیکنڈ میں آپ کو ہر چیز ازبر یاد ہوتی ہے، اور آپ جس طرح دیدہ دلیری سے بات کرتے ہیں نا، سو ایز اے بردر عامر نذیر بھائی آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی نذیر صاحب سے اگر اجازت ہو تو ایک بات میں آپ کے توسط سے کرنا چاہتی ہوں کہ نذیر صاحب کہہ رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے کہ بڑے لوگوں نے قادیانیت جو ہے نا وہ جوائن کی ہے، تو بھائی ٹک ٹاک کے اندر ٹھیک ہے جتنا قادیانیت کا پردہ روپوش ہو گیا نا، جتنا پردہ اٹھ چکا ہے نا قادیانیت کی لٹریچر کا، تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ قادیانیت جوائن نہیں کر رہا۔ جو لوگ لٹریچر پڑھ لیتے ہیں نا وہ قادیانیت پہ لات مار کے چلے جاتے ہیں، اور ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے قادیانیت چھوڑی، جو بیچارے لا علم قادیانی جو ہیں جنہوں نے لٹریچر کبھی پڑھا نہیں ہوا، جب ان کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا لٹریچر آیا
तो उनको फिर पता चला कि इसने तो किस दजल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें तो इसकी असलियत जो है वो पता ही नहीं थी। ठीक है, तो फिर वो कादियानियत को लात मार के निकले हैं बहुत खुशी से, दीदा दिलेरी से और बहुत खुश दिली से। और आज ये मुकाम आ गया है कि अब उन लोगों को, मैं जीती जागती मिसाल हूं, जितनी जिंदगी मैंने कादियानियत में गुजारी है ना, मुझे लगता है मैंने गंद के ढेर में गुजारी है। क्यों? क्योंकि वो पूरी जिंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से जो है ना बिल्कुल ना वाकिफ थी, ना अहदीस का कोई दर्स, ना कुरान मजीद की कोई बात। ठीक है, सिर्फ क्या होता है मीटिंगों इजलासों में, क्या होता है चंदा चंदा चंदा। ठीक है, ये हमारे खलीफा वक्त ने ये तहरीक स्टार्ट की है, लूटो, इधर से लूटो, उधर से लूटो, बस ये सारा कुछ होता है। प्यारी बहन, ये नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, वो आपको जवाब देंगे। ठीक है ना? नजीर साहब सुने, एक मिनट हौसला रखें। आप मुझे ये बताएं, आपने किताबें कितनी पढ़ी हुई हैं? नहीं, नजीर साहब, आपने किताबें कितनी पढ़ी हुई हैं? आपने किताबें कितनी पढ़ी हुई हैं? नहीं, नजीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने तो झूठ सुना नहीं, क्योंकि अभी तो खामोश रहो, जब तक सिस्टर की बात मुकम्मल नहीं होती, बाद में आपको मौका दे। खामोश रहो प्लीज। आमिर भाई, इनको ये पूछें कि उन्होंने किताबें कितनी पढ़ी हुई हैं, और मैं क्या, जितने एक्स कादियानी है ना उनको बुला के पूछ लें। ठीक है ना? सॉन्ग के हिसाब से एक्स कादियानी फिर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, उन सबको बुला के पूछ लें कितनी देर जिक्र करते हैं आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कितनी हदीस आप लोग अपने मुझे शर्म आती है, शर्म बिल्कुल मैं अल्लाह बता रही हूँ, शर्म आती है। नॉर्मल जो मुसलमान घरानों के बच्चे होते हैं ना, उनको जो है ना 11-12 साल की उम्र तक ना अच्छी खासी अहदीस का इल्म होता है। ठीक है, दुआएं आती हैं, अहदीस का इल्म होता है। हमें क्या सिखाया जाता है? हम जो जाके नासरात के रूप में बैठ जाती हैं उधर, हफ्ते में 3-3 दिन मीटिंग अटेंड करती हैं 1.5-1.5 2-2 घंटे की, उसमें क्या सिखाया जाता है? फिर लजना को क्या सिखाया जाता है? लजना को क्या सिखाया जाता है? और फिर आप लोग आ जाते हैं कि जी ओ मुसलमान औरतें तो ये करती हैं तो वो करती हैं। कादियानी औरतें क्या क्या करती हैं? कादियानी औरतें क्या क्या करती हैं? निदा नसर कादियानी औरत ही थी ना। ठीक है, और कितनों के राज हैं, एक निदा नसर नहीं है, ये पूरी की पूरी निदा नसर से जो है ना, फिर ये जो कसरे खिलाफत है वो भरा पड़ा है। एक की तो बस वीडियो बाहर आ गई ना, कितनी लोग हैं जो, कितनी औरतें चुप्पी लगा के बैठी हुई हैं। रिश्ता नाता डिपार्टमेंट में तुम लोगों को क्या होता है? मैंने 1.5 साल 19 जून 2024 को ये लानत छोड़ी, ये लानत आवाज में कोई मसला आ रहा है मुझे? जी, तो मैंने लास्ट ईयर छोड़ी थी, तो मुझे सारा कुछ पता है कि रिश्ता नाता में क्या होता है, कैसे नंबर एक्सचेंज होते हैं लड़के लड़कियों के, कैसे वो मिलते हैं, और फिर कैसे लड़के इनकार कर देते हैं, मैं लड़की पसंद नहीं आई। और डिटेल बताऊं? अब इधर भाई बैठे हुए तो मैं अपना मुंह बंद रख रही हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का। तो नजीर साहब, अपने गिरेबान के अंदर ना झांके, आपका तो खलीफा इस काबिल नहीं है, इस काबिल आपका खलीफा नहीं है। एक औरत रो रो के उसको दरख्वास्त कर रही है, मेरे साथ 8 साल की उम्र से ये सब कुछ हो रहा है, रो रो के दरख्वास्त कर रही है। ठीक है, और वो कह रहा है उन्होंने दिल में माफी मांग ली होगी। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू नजीर साहब। लानत है मिर्जा मसरूर के ऊपर। और मेरा बस चले तो मैं उसको लंदन की सेंट्रल हाई स्ट्रीट पे जाके लेके उसको मिर्जा नजीर पूरा नाम है। हाँ जी, मेरा बस चले तो छित्रों 100 सैंडल्स का हार पहना के उसको सेंट्रल लंदन की दौड़ लगवाऊं। जो इंसान इतना, जो इंसान, और तरबियत तुम लोगों ने की है ना, तरबियत तुम लोगों ने की है ना, तुम लोगों ने की है। अगर तुम लोगों ने की है, तुम लोगों के मेरे माँ बाप कादियानी थे ना। ओ हेलो मेरी बात सुनो नजीर साहब, और नजीर साहब, और लानत तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने पूरे सफे भरे हुए, लानत 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 लानत। और गाली देने, और नजीर साहब गाली देने पे आप लोगों को क्यों इतराज हो रहा है? गाली तो दुआ है आप लोगों के लिए, गाली जो देता है उसके आगे दुआ दो आप लोग। जितनी बात
उधर से आए हैं ना, अभी रास्ता सा ठीक होंगे ना, उधर से आए हैं आप। प्यारी बहन आपकी सरकारी और नजीर साहब मेरी तरबियत जो उसने भी की है ना, कादियानी घराने में मैं पैदा हुई ना, वो अगर मैं मुसलमान घराने में होती और तुम लोगों की है तो तुमने किताबें नहीं पढ़ी हुई ना, किताबें खोलो, इधर आ जाते हो अपना मुंह लटका के, भाई किताबें पढ़ो। प्यारी बहन गालीबाज तबीयत है ਉਹ आपकी, ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਫਿਰ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਾਂਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਲਾਨਤ नहीं, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ये बहन अभी आराम से बात नहीं कर रही है, इनकी सरकारी तरबियत नजर आ रही बात करनी है। गल सुन, ट्रू मुस्लिम एक सवाल करना चाहता, सुन ले। अच्छा मुझे हाँ जी मुझे जरा उन बहन को अभी रिस्पॉन्स करने चले आमिर नजीर भाई, जो मैंने आपके बारे में बात की है वो बिल्कुल सच है, मैं बिल्कुल आपको माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रदर, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। मैं फिर बहन ने अच्छा नजीर साहब को जरा मेरी तरफ से जवाब दे दें जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। प्यारी गुमराह बहन, ओए सवाल, प्यारी गुमराह बहन, ओए नजीर बदतमीजी ना कर, मैं ज़बान नहीं इसमें बदतमीजी क्या है, मैं तो प्यारी बहन गुमराह कह रहा हूँ, खाली गुमराह फिर मिर्जा कादियानी गुमराह जेड़ा लानता पांदा मर गया सारी दुनिया दे उत्ते। नहीं वो देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई मौजूद है, लानत पाना, ओए गल सुन, किसे ते लानत पाना गुमराही हुंदी है। और दूसरी तरफ मौजूद ना ले जाओ। सुन आबद साहब दा सवाल मैनू जरा नहीं मैं उन्होंने ने जवाब देने देने जड़ा कहेगा यार जवाब दे ली ना, इकट्ठे ही फिर दे ली, पहला ट्रू मुस्लिम दा सवाल नहीं इकट्ठे नहीं, मैं हां जी जी नजीर साहब आप ठीक है मोहतरम? वारे हूँ आप पर जी, आपसे एक सवाल करना है मिर्जा साहब की किताबों से लेके, तो आप अगर जवाब दे दें तो आपका बड़ा मशहूर होऊंगा मैं। तो मैं ये सवाल असल में मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मिर्जा साहब को मानते हैं, तो मैं जो ये गैर अहमदी मुस्लिम है मैं इनसे नहीं पूछना चाहता, क्योंकि अगर ये इनसे मैं पूछूँ ये जवाब दे तो मेरे दिल में ना थोड़ी बात सी रह जाएगी, क्योंकि हम तो मिर्जा साहब को नहीं मानते। तो आप अच्छे से जवाब देंगे, आप सही जवाब देंगे क्योंकि आप उनको मानते हैं, तो मैं मुतमिन हो जाऊंगा। अगर एक नुक्ता बताना चाहता, सवाल करने वाले भाई को हर उस बंदे को एक नुक्ता बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपको मिर्जा साहब के बारे में सवाल है ना, तो आप मिर्जा साहब से सवाल करें, वही बड़ा जबरदस्त खुदा की दियो इल्म से जवाब दे सवाल सुन लेना। मिर्जा साहब के एक बहुत ही मुखलिस मरीद थे, उनका नाम था डॉक्टर मिर्जा याकूब बेग साहब, ठीक है? तो उनको अब्दुल हकीम खान साहब ने बताया कि मिर्जा साहब लाहौर तशरीफ ला चुके हैं, तो आप उनकी ज़ियारत कर सकते हो। तो वो जो डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब बेग साहब है, वो कहते हैं वो मिर्ज़ा साहब को मिलने के लिए लाहौर का एक इलाका है हीरा मंडी, वहाँ मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब बेग साहब को बताया अब्दुल हकीम खान साहब ने कि मिर्ज़ा साहब हीरा मंडी के अंदर मौजूद हैं। तो आपको तो पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले हीरा मंडी में क्या होता था, वो मैं नहीं बताना चाहता। तो आप मोहतरम ये बताएं कि मिर्ज़ा साहब हीरा मंडी में क्या कर रहे थे लाहौर के अंदर? क्यों नहीं, आपके बहन भाई सारे वहाँ रहते हैं, तो आप क्यों नहीं बताना चाहिए, क्या मसला है उधर? ये देखें आप जवाब नहीं दे रहे, उल्टा जो है ना उल्टी सीधी तो बात आपके क्या मुसलमान भाई नहीं रहते हैं वहाँ? मेरी बात सुने, आपको अगर सब्जी चाहिए आप सब्जी की दुकान पे जाएंगे, कपड़े चाहिए कपड़े वाले की दुकान पे जाएंगे ना, सोना चाहिए सोने वाली दुकान पे जाएंगे। तो आप वो, और हम सबको पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले हीरा मंडी के अंदर क्या होता था। तो मिर्जा साहब वहाँ क्या कर रहे थे भाई? उधर जो सारे रहते हैं, आपके बहन भाई क्या करते हैं? सारे बहन भाई रहते हैं वहाँ, क्या करते हैं? नजीर साहब एक मिनट, ट्रू मुस्लिम का नाम है, ट्रू मुस्लिम एक मिनट ठहरो। 1947 से पहले वहाँ जो होता था सबको पता है। ट्रू मुस्लिम पहले तो ये बता, ट्रू मुस्लिम अभी जो कहा सब्जी मंडी जाना, फलानी मंडी इस टाइम तहज्जुद पढ़े जाते हैं वहाँ, तहज्जुद पढ़ते हैं इस टाइम। जो हाफिज शेख साहब, मैं ट्रू मुस्लिम ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। एक मिनट गल कर लें अकबर साहब, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਜੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। तो ਤੁਸੀਂ कहना मैनू ट्रू मुस्लिम ने पूछण दियो। ट्रू मुस्लिम साहब जैसे आपने बताया कि सब्जी मंडी आपने हाफिज शेख साहब ट्रू मुस्लिम सही सवाल कर रहे हैं। ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਨਜ਼ੀਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। सवाल अकबर जैसे लोग रहते हैं उस जगह पे, अकबर नहीं ओदे मिर्जा महमूद की पैदाइश वास्ते गए सी। वहाँ ऐसी गंदी मखलूक जो है वहाँ पैदा होती है, वहीं से लगती है। गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की पैदाइश वास्ते गए सी हीरा मंडी।
अच्छा हाफिज शेख साहब, चले मैं आपसे इज्जत एहतराम से बात करता हूं। अब मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं आपको क्या तशवीश है। तो इसके पीछे दो बातें हैं। एक तो मिर्ज़ा साहब के जो बड़े बेटे हैं, क्या नाम है उनका, मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब, वो लिखते हैं कि उनके वालिद साहब एक रंगीन मिजाज आदमी हैं थे उस वक्त। और दूसरी बात यह है कि मैंने सुना है कि मिर्ज़ा साहब अपने ज़माने में कोई अपने वालिद साहब की पेंशन थी, कोई मेरा ख्याल है 400 रुपये या 700 रुपये थे, वो भी मिर्ज़ा साहब ले गए। तो ये दो बातों की वजह से मुझे जो है ना कुछ दाल में काला लग रहा है कि मिर्ज़ा साहब हीरा मंडी के अंदर जो पाए गए हैं। पहले अब आप आराम से सुन ले मेरी बात। जी सुनाए। अगर आपने तो मिर्जा साहब को जो साबित करना कर दिया, अगर आप अपने बाप के बेटे हैं और हलाल ज़ादे हैं, आप यहाँ पे लिखा के सबूत दिखाएंगे कि मिर्जा साहब के जो है अपने बाप की पेंशन लगी हुई थी और वो पेंशन लेके चले गए थे। पहले तो आपने मुझे पेंशन साबित करनी है कि वो पेंशन है। अगर आपने नहीं साबित किया, अगर आपने ठहर जाओ, एम्बुलेंस नहीं बनाओ, ठहर जाओ यूसुफी साहब, अगर आपने ये साबित कर दिया कि मिर्जा साहब के वालिद साहब पेंशन लेते थे, उसका नाम पेंशन था और उसका कोई सबूत दिखाएंगे, ये है वो पेंशन के कागज, तो फिर बात आपकी दुरुस्त होगी। अगर पेंशन साबित वजीफे को पेंशन ही कहते हैं। मेरी उनसे बात हो रही है, उन्होंने मुर्तजा साहब मेरे से सवाल किया है। मुर्तजा साहब ठहर जाओ, ट्रू मुस्लिम साहब, आपने पेंशन साबित करनी है, नहीं तो आप हरामजादे साबित होंगे। दूसरी बात, हीरा मंडी आपने कही है, आप हीरा मंडी को किस वजह से हीरा मंडी कहते हैं? हीरा से क्या मुराद है? सब्जी वाली मंडी को सब्जी कहा जाता है, दूसरी सोना वाली मंडी को सोने भी कहा जाता है। हीरा मंडी से आप क्या मुराद लेते हैं? और हीरा मंडी, मैं तो लाहौर का रहने वाला हूँ, मैंने ये इलाका देखा भी हुआ है, वहाँ पे मस्जिदें भी हैं। आप उन मस्जिदों को हराम मस्जिदें करार दे दें क्योंकि वो हीरा मंडी में है और बादशाही मस्जिद उसके बहुत करीब है, बिल्कुल पास है बादशाही मस्जिद। तो आप ये भी कहें कि बादशाही मस्जिद हीरा मंडी में है, हीरा मंडी के बिल्कुल पास है, लिहाजा उस मस्जिद की क्या हैसियत और औकात रह जाती है। आपको पता है कि हीरा मंडी को हीरा मंडी क्यों कहते हैं? वहाँ एक सिख रहता था, एक सिख रहता था जिसका नाम हीरा सिंह था। सुन लें, एक सिख था, तो मुस्लिम साहब सुनो, एक छोटा सा मुस्लिम साहब, जहाँ पाकिस्तान, वो मुस्लिम साहब अभी अब अपना मुंह बंद रखे ना, फिर बाद में बात करें। एक सिख था जिसका नाम था हीरा सिंह, पाकिस्तान बनने से पहले उसकी वहां पे दुकानें थी और उसकी कई दुकानें थी, जिसकी वजह से उसको कहा जाता था कि ये हीरा सिंह की मंडी, यानी हीरा मंडी उसको उस सिख के नाम की वजह से कहा जाता था कि उसकी वहां पे दुकानें थी। आपके जो गलत कंसेप्ट और गंद है ना दिमाग में, वो और है। आप हीरा मंडी को सिर्फ समझते हो कि वो कोई कंजर खाना और कंजरियों की जगह थी, इस वजह से उसको हीरा मंडी कहा गया, इस वजह से हर किसी नहीं कहा गया। अपने आप को दुरुस्त करें। नहीं है, ये आप अल्फाज इस्तेमाल करें। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ ना, उनका कहने का मकसद तो यही है। शेख साहब देखिए, आप एक बात को गलत बात को नहीं, बादशाही मस्जिद का मुझे आप डिस्टेंस बताएंगे हीरा मंडी से कितना दूर है? हीरा मंडी के अंदर थे, हीरा मंडी के पास क्या जरूरत पड़ी बादशाही मस्जिद बनाने की? लकी भाई क्या कारोबार करती थी वहाँ? अब्दुल हकीम साहब ने मिर्जा याकूब बेग को बताया कि मिर्जा साहब हीरा मंडी के अंदर मौजूद हैं। तो बता दिया कि हीरा मंडी, वो हीरा मंडी क्यों कहलाई जाती है? हीरा मंडी पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ क्या करते थे लोग? याशी करते थे। कौन सा आपके बाप दादा करते होंगे? उन्होंने आपको बताया होगा कि हम जाते थे वहां पे याशी करने। आपके बाप दादा जाते होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा कि हम जाते थे भी वहाँ याशी करके आते थे। तो मिर्जा साहब हीरा मंडी के अंदर क्या करते थे? देखे वो तहरीर से। सब गुस्सा ना करें। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। क्या करने गए थे? मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने। वहाँ पे आपको मुर्तजा साहब, आप लाहौर में रहते हैं। शेख साहब बात तो मुर्तजा साहब, हीरा मंडी आज भी हीरा मंडी ही कहलाती है। वहाँ पे मस्जिदें भी हैं, वहाँ लोग अपना होते ना, जो पाकिस्तान बनने से पहले हीरा मंडी के अंदर होते थे, वो पाकिस्तान बनने के बाद नहीं हो रहे, मिर्जा साहब के दौर में होते थे। तो मुस्लिम ये बातें जाके ना अहले तशियों से पूछो, अहले तशी वहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं, उनसे पूछो कि ये तुमने किस किस्म की मंडी तामीर की हुई है। अहले तशियों ने, अहले तशी जितने वहाँ रहते हैं और कोई नहीं रहता, वो कोई मिर्जाइयों की जगह नहीं है, मिर्जाइयों का गढ़ नहीं है। 47 से पहले जो काम मुसलमान भाइयों का गढ़ है, वो जिस काम की वजह से हीरा मंडी अहले तशियों का गढ़ है। अहले तशियों से पूछो कि तुमने किस किस्म की मंडी कायम की है। वो तो अहले मल्ला है ना, रहते हैं। नहीं, अहले मल्ला नहीं है, वो काम नहीं, अहले मल्ला नहीं है, वो उनकी बस्ती है। उनसे पूछो कम वक्तो ये किस किस्म की हीरा मंडी कायम की है। साहब की लैन जाते सन, ਇਹਦਾ जवाब ਦਿਓ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? मिर्जा साहब ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, अगर ਤੇ ਕਿਸੇ गलत नीयत से नहीं गए।
ਅੰਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੰਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਗੱਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਏ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗਾਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਾਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੇ ਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਥਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਰਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੱਲਿਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਾਬਕ ਕਾਦੀਆਨੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੂ ਮੁਸलिम को जान से मारने की धमकियां दी गई मुसलमानों की तरफ से 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, मुस्लिम 2024 ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। जान से मारने की धमकियां दी गई। ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਅੱਜ। ट्रू मुस्लिम को जान से मारने की धमकियां दी गई कि अगर तू अब मिर्जाइयों के हक में बोला हम तेरी जान ले लेंगे। आज जो हाल करता ना उन्हें, डुब के मर जाओ मर्दियो, डुब के मर जाओ। तुम लोगों ने जान से मारने की धमकियां दी, डुब के मर जाओ मुस्लिम को तुम लोगों ने जान से मारने की धमकियां दी। ट्रू मुस्लिम जान हाजिर है तेरे वास्ते, जान। ट्रू मुस्लिम तेरे वास्ते जान हाजिर है। से मारने की धमकियां दी गई। डुब के मर जा, डुब के मर जा, डुब के मर जा। जागी बात इतनी गर्दी करना पिया मैं। ट्रू मुस्लिम को जान से मारने की धमकियां दी। मिर्जा लैंड की गया के हक में बोला ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ। अच्छा मुस्लिम फिर डर गया, वो अपनी जान बचाने के वजह से इतने बकवास करता है पुट्ठी सिद्धि। शेख साहब धमकी दी आप लोगों ने उसको, ट्रू मुस्लिम को नहीं देंगे धमकी। आज के बाद अगर तुम मिर्जा मैं बोला कि तेरी ऐसी कर देंगे। चलो ट्रू मुस्लिम की सारी बाहर निकल गई, तो सारा ट्रू मुस्लिम बाहर निकल गया। समझ आ गई ਤੁਹਾਨੂੰ? बोली जो यही शेख साहब आप बोलने दो ना, मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे किसी ने धमकी नहीं दी। मैं दूसरी ये कसम खाता हूँ कि मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ आमन नज़ीर साहब या किसी और के कहने पे नहीं पूछ रहा, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब क्या लेने गए थे हीरा मंडी में। हीरा मंडी में आप सबको पता है, हमको भी पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ क्या गुल खिलाए जाते थे, लोग क्या करते थे, अयाशी करते थे, एन करने आते थे, सबको पता है। ये 1947 से पहले हीरा मंडी इसी काम के लिए मशहूर थी। मैं चला थले, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਟਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਜੀ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। ओ चले गए ना शेख साहब मसरूफियत की वजह तो चले गए, उन्हें कम पै गया। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਸ਼ਤੀ ਕੋਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੱਟ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਪਾਲਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਲੈ ਪਾਲਕ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਭਲਾਈ ਜੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਗੋਦ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਸ਼ਤੀ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੰਜਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਕੰਚਨੀ ਕੋਲੋਂ। अच्छा ये मिर्जा बशीर मिर्जा साहब ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖਲੀਫੇ ਕੱਢਦਾ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਚਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਏ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਈ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਜਰ ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਚੋਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਜਰ ਜਾਲੀ ਖਲੀਫੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਂਡੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਖਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ। ਅਮਰਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਹਕੀਮ ਨੂਰਉਦੀਨ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਮਸੂਖ ਨੇ?